join my audio visual class. Today I am telling you about the importance of mental symptom. As you know that in homeopathic have three leg of symptoms. One leg is mental, second leg is physical general, and third leg is physical particular. So here, why we give more importance to the mental symptom? Because mental symptom represents the man as a whole. It is the innermost man, reflection of their will, their hate, their desire, aversion, etc. all. But one thing very difficult, how to take a mental symptom. This is very difficult one. Hahnemann says, only mental symptoms are important that are well marked. All mental symptoms are not important. So here in mental you find common mental symptom, characteristic mental symptoms, particular mental symptom. All have own importance. So here I am saying about what are the difficulty in taking the proper mental symptom. Just I have told about that. First difficulty is the interpretation of mental symptom should be correct. A physician unable to interpret what one patient want to say, patient क्या कहता है. As for example, you go through repertory, fear of alone. Symptom is fear of alone or fear of alone. Why? For fear there are so many causes. One में बच्चा है, अगर वो fear क्यों अकेले से डरता है? भूत का डर है. Some fear of darkness, some have fear of death. जैसे arsenic, never like to live alone. अकेले नहीं चलता तो कोई हर बगल में रहे. Lycopodium does not like to a person, but person should be on the other side. वे alone नहीं चाहते. तो ये alone क्यों है? Fear of dark है, fear of ghost है ना? Fear of murder है, ठीक है. तो ये जो डिफरेंट, अब एक तो अकेले क्यों नहीं रहना चाहता है, उसे देर सो नहीं. जैसे एक फॉर एग्जाम्पल आप पढ़े हो डेजर्टेड फीलिंग, एबेंडॉन्ड, रेपर्टरी में पढ़े आप. अगर उसे मूल अगर वैसे देखें, ऑरा मेटालिकम, पल्सेटिला, सिपिया, ऑल्सो में. अब ऑरा में why he feel abandoned? Because he feels that I am a useless person in this earth. इस धरती पर मेरा कोई ज़रूरी नहीं है. तो विचार क्या? सुसाइडल थॉट. वो चाहता है कि हम सुसाइड कर लें. उसी तरह से प्लेटिना को देख लो. प्लेटिना सी आइसोलेटेड हरसेल्फ, अपने आप को अलग कर ली. बिकॉज शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, she looks like very beautiful, she has much money. She feels that the person living around us are junior to me, sub under standard. So automatic, a person who is isolated herself become isolated at all. No one go there. So isolation feeling, abandoned feeling of ornament, abandoned feeling, isolation feeling of platina are different. Their interpretation should be done correctly. Similarly, pulsatilla, very mild yielding devotion. But when she feels that her love is dividing, or if she feels that no more people like me or give attention on me, she become abandoned. So mental symptom should be interpreted correctly, then it will be remarkable. Third point, mentalism belongs to rational mind, intellectual mind and memory. Dr. Kent have guided this. Very simple. Which symptom should we take first? He gave love and hate. He gave priority. Which thing do like, which thing do don't like. And second,
intellect, rational mind, intellect, how you perceive, how you express, how you अंडरस्टैंड, कैसे आप समझते हो, कैसे एक्सप्रेस करते हो, कितना क्विक परसेप्शन है तुम्हारा, ये सब क्या है? इंटेलेक्चुअल माइंड. एंड थर्ड ही गिव मेमोरी, मेमोरी एबिलिटी. अब सपोज दैट द लव एंड हेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डू लाइक, आई लाइक एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, आई लाइक एवरीथिंग ऑर्डर, everything. But one thing very important, as Dr. Borinson says, कि if person is insane, if person is liar, like kleptomania, perverted sex, no one can express clearly, वो उसको छिपा लेता है. ऐसे स्थिति में जो एग्रेवेट, कुछ पेशेंट है जो एग्रेगेट करता है, काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बोलता है, पैराडॉक्सिकल सिम्टम है ना. और कुछ है जो छिपा लेता है, मेलानकॉली है, छिपा लेता है, बोलता नहीं. तो इस तरह की कंडीशन में मेंटल सिम्टम लेना बहुत कठिन होता है. इसलिए मेंटल से इम्पॉर्टेंट है, परंतु लेने से पहले उसका इंटरप्रिटेशन सही हो, और हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू इंटरोगेट. Suppose that a question asked, I like Dr. Pierce Smith. He says that a patient comes to him and asks, what do you think when you are in a shop of sweets? मिठाई की दुकान में आप अकेले खड़े हों और दुकानदार नहीं हो, पूरी मिठाई रखी हुई है, आप क्या चाहोगे? अगर वो ग्रीडी है, अगर यह बहुत फॉन्ड ऑफ मिठाई है, ही विल ट्राई टू. तो ये चीज़ को अगर डायरेक्ट, क्या आप मिठाई चुरा के खाते हैं, कोई बोलेगा नहीं. तो कभी भी मेंटल सिम्टम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए. ऑलवेज आस्क इनडायरेक्ट. देन विल से ऑलवेज आस्क एज योर विल. आपकी इच्छा क्या होती है ऐसे समय में, क्या इच्छा होगी आपकी, नहीं? उस तरह से ये बहुत डिफिकल्ट है. तीसरा चीज़ है मेंटल मेमोरी. थर्ड है मेमोरी. सम मेमोरी समटाइम बिकम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट व्हाट हैपन जस्ट सी फॉरगेट. आप अभी क्या बोले भूल गए, पिछली बात याद है और अभी की बात. इन केस ऑफ अल्जाइमर कैसे मेंटल सिम्टम, अल्जाइमर केस में कैसे मेंटल सिम्टम लेंगे, या कोई इंसेन है कैसे लेंगे, वो इंटरप्रेट ही नहीं कर सकता है. अब मेंटल सिम्टम डिफरेंट मेंटल लेवल से आता है. एक जो लेमैन है वो कैसे एक्सप्रेस करता है, और एक पढ़ा लिखा आदमी, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, प्रोफेसर है, वो कैसे एक्सप्रेस करता है. तो जो कहा गया, एक जगह कहे हैं कैन कि मेंटल सिम्टम पढ़े लिखे लोगों में लेना बहुत कठिन है. क्यों? कि वो हर चीज़ को वो इंटरप्रेट अपने से कर देगा. पर एक लेमैन है वो, तो वो अपने ढंग से करेगा, वो उसको इंटरप्रेट, जो विद्वान तो है नहीं. इसीलिए कहा गया है कि मेंटल इंटेलेक्ट पर्सन में, विद्वान आदमी में मेंटल सिम्टम लेना बहुत कठिन होता है. नेक्स्ट, हम शुड बी वर्कआउट फर्स्ट एज यूजुअल. क्यों मेंटल सिम्टम को पहले करना चाहिए? हम केस टेकिंग कैसे करते हैं? प्रेजेंट कंप्लेन, तब उसके बाद लोकल मंडली कर, उसके बाद तब जनरल, लास्ट में हम लोग लेते हैं मेंटल. क्यों लेते हैं मेंटल? कि तब तक पेशेंट आपके कॉन्फिडेंस में आ जाता है, पेशेंट अपने रोग को कह के वो संतुष्ट हो जाता है. अगर पहले ही मेंटल वो जो तकलीफ़ सफ़र कर रहा है अपने तकलीफ़ से, उसको अगर पूछे तो गुस्सा आ जाएगा. आप किसी को पेट में दर्द है और पूछिए कि आपको कहाँ रहना पसंद करते हैं, गुस्सा ना. तो पहले जो उसका मेन कंप्लेन है, जिससे वो सफ़र कर रहा है, उसको पूरी तरह से सुन के, समझ के, कॉन्फिडेंस में आने के बाद तभी वो मेंटल सिम्टम प्रॉपरली देता है.
एक्यूट केस, इन क्रॉनिक केस भी उसी तरह। इसलिए हम लोग केस टेकिंग करते हैं, पर जब रेपटाइजेशन करते हैं तो मेंटल को ऊपर ले जाते हैं, पहले मेंटल वर्कआउट करते हैं, कैसे मेंटल क्या चेंज है, क्या विलिंग है, क्या फीलिंग है, क्या डिजायर है, क्या एवर्सन है, कैसा रिलेशन है, सोसाइटी से कैसा रिलेशन है, अपने घर में कैसा फील करता है। देयर सो मेनी डॉक्यूमेंट। अब आइए बोनेगेसन व्हाई ही से दैट मेंटल ही नॉट सो। एक्चुअली ऐसी बात नहीं कि मेंटल ने बोनेगेसन मेंटल को अंडरमाइन कर दिया, नहीं, मेंटल को इम्पोर्टेंस दिया, और प्रैक्टिकली बताया उन्होंने इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक ए मेंटल सिम्टम, है ना। तो अगर हम मेंटल ले नहीं प्रॉपर ले, गलत ले रहे हैं तो गलत रिजल्ट आएगा ना। अब जैसे पूछिए किसी से कि आपको डर किस चीज़ से लगता है, तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है दुनिया में जिसको डर नहीं लगता है ना। अब आप किसी को अकेले कोई रहना चाहता है? नहीं, सब चाहता है कि कहेगा हम कोई डर नहीं, हम ब्रेव है, और तो डर है, हर का डिफरेंट लेवल है डर का। एक आदमी है जो थोड़ा सा अकेला पड़ा तो बच्चा है अकेला रोना शुरू नहीं, परंतु एक है कि रहता है परंतु कॉशसली रहता है, नॉट फीलिंग वेल, अच्छा महसूस नहीं करता है। तो वैसे कंडीशन में अब फियर ऑफ सबको है, कौन नहीं कंपनी चाहता है, सब कोई अपना कंपनी चाहता है। एक जानवर भी कंपनी चाहता था, इंसान है कंपनी चाहता है, पर कंपनी कैसा? एक है कि पूरे कंपनी से इंटरमिंगल्ड होकर मिलता है, घुल मिल के बात करता है, मजाक करता है, हंसी होता है, कभी साथ नहीं छोड़ता है। एक सौ बात करता, अपने काम में लगा रहता है। तो कंपनी सबको चाहिए, और कंपनी एक है बिल्कुल कंपनी के बिना रह नहीं सकता है, सॉलिट्यूड इज अनबियरेबल। तो अलग अलग है, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग, इसलिए बोनेगेसन ने कहा कि मेंटल सिम्टम को लेना बहुत, और उन्होंने कहा कि जो जनरल सिम्टम इट इज ऑल्सो ए लैंग्वेज ऑफ इनर मैन। व्हाट इज योर डिजायर, एवर्सन, रिलेशन टू हीट एंड कोल्ड, modalities, all are the also the symptom of internal man. So complete symptom very easy and perfectly. So he advised or he practices, he not ignore, but he, if some catastrophe is found, अब X for example, patient worse when think about the disease, किसमें है? कैलकेरिया फॉस, मेडोराइनम, इस में। एंड पेशेंट बेटर व्हेन ही ऑक्यूपाइड, अपने काम में जब लीन होता है तो उसको आराम मिलता है। अब दोनों को देखिए, एक व्हेन ही माइंड डाइवर्टेड टू हिज वर्क, नो कंप्लेन। वन इज नॉट डाइवर्टेड व्हेन ही थिंक अबाउट द डिजीज हिमसेल्फ, एग्रावेट। अब दोनों दो कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन में कैसे मेंटल सिम्टम लीजिएगा? दिक्कत होती है। इसलिए मेंटल सिम्टम का इम्पॉर्टेंट है, परंतु इसको बहुत प्रॉपरली और कॉशसली लेना है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या, कभी मेंटल सिम्टम में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछिए। नेवर ट्राई टू पुट आंसर इन द माउथ ऑफ पेशेंट। उसका क्या जवाब वो मत पूछिए। Allow him to speak himself. How do you feel? What do you like? Which things you are more fond of? आप किसके ज़्यादा शौकीन हैं? आप अकेले बनाते तो क्या करना चाहते हैं? कैसा इन्वायरमेंट चाहते हैं आप? कौन सा इन्वायरमेंट आपको ज़्यादा सूट करता है? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, इनडायरेक्ट। देन यू एक्सप्लेन माई इन्वायरमेंट, माई विल, माई बिहेवियर, इट इज यू एक्सप्लेन something very, because mental objective also. A patient comes to your chamber and try to lift the pin, try to itching his ear, paperweight, like to see something. तो ये activity आप that you can patient observe. He will not sit
quiet. He always touch everything. He move, stand. You see around the clinic. So such behavior should be marked properly. So mental is also objective also. Next, narcissism is essential because it expresses the innermost of the man. I have told that it is the internal feeling, and he behave like. Patient is anxious, patient is restless, or patient fearful, patient have particular anticipation, patient when ready to church, opera, diarrhea sets in. How ask questions such type of? है ना अर्जेनेटिकम में एग्जामिनेशन फोबिया etc. So symptoms should be asked mental properly and not directly, and always ask mental symptom in the form of general, so that patients खुद आपको बताए कि मेरी ये स्थिति होती है, ऐसे ऐसे कंडीशन, ये हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ऐसा जगह पसंद नहीं है, नहीं. नेक्स्ट पॉइंट, तो मेंटल जनरल ऑफ द पेशेंट बट इट मे कॉमन और कैरेक्टरिस्टिक. अब जैसे कि किसी को भी से है यू आर रिलीजियस, कौन सा आदमी नहीं है जो धर्म को नहीं मानता. अब कुछ लोग ऐसे हैं एस्टामोनियम की तरह कि घोड़े के पूंछ के पीछे है ना पेड़ पौधा को प्रणाम करना, एक मैनिया होगा. ये तो सभी है. अब उसकी डिग्री क्या है वो देखना आपको. उसी तरह से जैसे स्टीलिंग हैबिट, चोरी करने की आदत, क्लेप्टोमेनिया. आप कहीं जाते हैं होटल में गया चम्मच पॉकेट में रख लिए, किसी घर अच्छा चीज़ लगा तो फूल तोड़ लिए. तो ये जो एक्टिविटी है ये कोई उस ऑब्जर्व करना है, उसे पूछना है. तो डायरेक्ट पूछेंगे तो नहीं बोलेगा. सो मेंटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअलाइजेशन एंड ऑफ द पेशेंट. नेक्स्ट पॉइंट,